بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اور نئی کہانی میں خوش آمدید۔ ایران پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی عوام اس سے بہت خوش تھی۔ اس کی ایک ہی بہت پیاری اور خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کا نام نور بانو تھا۔ ایک دن شہزادی نور بانو محل کے باغ میں جھولا جھول رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وہاں پر کنیزیں اور سپاہی موجود تھے۔ ملکہ اور بادشاہ بھی وہیں تھے اور وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی کو باغ میں جھولا جھولنا بہت پسند تھا۔ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ روز شام کو یہاں آتی تھی۔ آج اس کے ساتھ ملکہ اور بادشاہ بھی آ گئے تھے۔ شہزادی حسب معمول جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت پرندے پر پڑی، جس کا رنگ سنہری تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شہزادی دنگ رہ گئی اور جھولے سے اتر کر اس درخت کے نزدیک آ گئی جس پر وہ خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پرندے سے کہا، تم کتنے خوبصورت پرندے ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھٹی میٹھی رس بھریاں کھلاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر پرندے نے کہا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں تم جیسی خوش اخلاق لڑکی کے ساتھ بیٹھوں اور باتیں کروں اور کھٹی میٹھی رس بھریاں کھاؤں، مگر میں تو نگر نگر کی سیر کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس لیے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پر پھیلائے اور اڑ گیا۔ شہزادی نور بانو بہت حیران ہو گئی کہ وہ خوبصورت پرندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، ابا حضور، مجھے بولنے والا پرندہ چاہیے۔ پہلے تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ شہزادی نور بانو کیا کہہ رہی ہے، مگر جب کنیزوں نے بتایا کہ درخت پر ایک سنہری پرندہ آ کر بیٹھا تھا تو انسانوں کی زبان بول رہا تھا، تو بادشاہ نے کہا، میں نے کہانیوں میں سنا تھا کہ پرستان میں کچھ ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی زبان بولتے ہیں۔ وہ پرندہ پرستان سے ہی آیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ کل پھر آئے۔ اگلے دن شہزادی نور بانو انتظار کرتی رہی، مگر وہ پرندہ دوبارہ وہاں نظر نہیں آیا۔ اس کی فکر میں شہزادی نے پورے دن کچھ نہ کھایا اور نہ ہی پیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بالکل ہی نا امید ہو گئی اور ملکہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ملکہ نے اسے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کی، مگر اس عجیب و غریب پرندے کے خیالوں کو شہزادی اپنے دل سے نہ نکال سکی۔ اپنی چہیتی بیٹی کی اداسی دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے بہت سارے کھلونے منگوا کر شہزادی کو خوش کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کھلونوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جب 2 دن گزر گئے تو ملکہ اور بادشاہ کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ شہزادی نور بانو چند دنوں میں نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائے۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہزادی کے ساتھ جا کر پرستان سے وہ پرندہ تلاش کر کے لائے گا تاکہ وہ اسے خوش کر سکے۔ یہ بات اس نے ملکہ کو بتائی تو وہ بولی، اگر آپ اس سفر پر روانہ ہوئے تو سلطنت کون سنبھالے گا؟ اس پرندے کی تلاش میں کئی روز گزر جائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ یہ اعلان کروا دیں کہ جو بھی پرستان سے وہ عجیب و غریب پرندہ لے کر آئے گا اسے بہت ساری اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے یہ اعلان کروا دیا۔ انعام کو سن کر بہت سارے لوگ اپنی قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پرستان بہت دور تھا، اس کا راستہ بھی بہت خطرناک تھا۔ راستے میں بہت سارے پہاڑ تھے، دریا تھے، جنگل تھے اور جنگلوں میں خونخوار جانور بھی تھے۔ بہت سے لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پر نہ چڑھ سکے، بعض دریا کو پار نہ کر سکے، کچھ لوگ جنگل میں درندوں کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی پرستان جا کر اس پرندے کو نہ لا سکا۔ ایک روز 2 نوجوان بادشاہ سے ملنے کے لیے محل آئے اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ اس پرندے کو ڈھونڈ کر لا سکیں۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی اور تاکید کی کہ وہ پرندے کو جلد سے جلد لے کر آئے، کیونکہ شہزادی نور بانو کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں نوجوان اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس خطرناک سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام ریحان تھا اور وہ ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ دوسرے نوجوان کا نام رحیم تھا اور اس کا باپ بہت بڑا سوداگر تھا۔ سلیم چونکہ ایک دولت مند باپ کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں بہت غرور تھا۔ اس نے ریحان سے کہا، تم جا کر اپنے باپ کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور انہیں گدھے پر لاد کر شہر میں بیچو۔ تم ان چکروں میں کہاں پر گئے ہو؟ ریحان نے اس کی بات کا برا نہیں منایا،
लकड़ियाँ तो मेरे वालिद काट लेंगे, तुम इसकी फिक्र ना करो। हमारे बादशाह सलामत और उनकी मलका बहुत अच्छे हैं, वो दोनों अपनी आवाम का बहुत ख्याल करते हैं। अपने बादशाह सलामत की वजह से हम लोग बहुत खुशहाल हैं। अब उन पर बुरा वक्त पड़ा है तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी मदद करें। मुझे इनाम की लालच नहीं, मैं तो बस उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैं वो परिंदा जल्द से जल्द लाकर बादशाह सलामत के हवाले कर दूंगा ताकि इनकी बेटी खुश हो जाए और हमारे बादशाह और मलका की फिक्र दूर हो जाए। वो बातें करते हुए काफ़ी दूर निकल गए। वो इस वक्त एक बड़े मैदान में थे जिसमें कहीं कहीं दरख्त नजर आ रहे थे। एक दरख्त के नीचे उन्होंने एक बूढ़ी औरत और उसके शोहर को देखा। रेहान और रहीम को आता देखकर बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और इन्हें रुकने का इशारा किया। रहीम बूढ़े शख्स को देखकर बोला, ओ बूढ़े शख्स, तेरा दिमाग खराब है जो हमारा रास्ता रोक रहा है। रहीम ने निहायत गुस्से से कहा और घोड़े पर बैठे बैठे झुककर एक हाथ से धक्का देकर बूढ़े को गिरा दिया और घोड़ा भगाता हुआ आगे निकल गया। उसे गिरता देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर दुहाइयां देने लगी और उसे जमीन से उठाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर रेहान जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा और बूढ़े को जमीन से उठाया और बोला, मुहतरम बुजुर्ग, आपको चोट तो नहीं आई? बुरा हो उस बदबख्त का, अगर मुझे पहले मालूम होता तो वो मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं इसे कभी भी ना रोकता। उसे छोड़िए, आप मुझे बताइए आपको कैसी मदद चाहिए। रेहान ने निहायत नरमी से कहा, बेटा, हम सुबह से घर जाने के लिए निकले हुए हैं। मैं अपनी बीवी के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। हमारा गांव यहाँ से चंद कोस के फासले पर है। हम बूढ़े हैं, चल चल कर बुरी तरह थक गए हैं, भूख से बुरा हाल है। घर पहुँचेंगे तो खाना खाएंगे और आराम करेंगे। तुम्हारे पास घोड़ा मौजूद है, तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर हमें गांव तक छोड़ दो। बूढ़े की बात सुनकर रहीम ने अपना खाना निकालकर इन दोनों को दे दिया। ये खाना उसकी माँ ने उसे दिया था ताकि सफ़र में अगर उसे भूख लगे तो वो खा लेगा। जब वो दोनों खाना खा चुके तो इस दोनों को घोड़े पर सवार किया और हुर्द घोड़े की बागें पकड़कर तेज़ कदमों से उनके गांव की सिमत रवाना हो गया। वो दोनों मियाँ बीवी से दुआएं देने लगे। शाम होते ही वो एक गांव में पहुंच गया। उस गांव में उस बूढ़े मियाँ बीवी का घर था। घर पहुंचकर बूढ़े मियाँ बीवी ने इसरार किया कि रेहान, यहीं रुक जाओ, रात होने वाली है, तुम्हारा रात को सफ़र करना ठीक नहीं है। रेहान ने उनकी बात मान ली। रात को खाने के बाद बूढ़े ने कहा, अब नौजवान, तुम बताओ कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। जवाब में रेहान ने उसे पूरी कहानी सुनाई और बताया कि वो बोलने वाले परिंदे की तलाश में परिस्तान जा रहा है ताकि वहाँ से बोलने वाले परिंदे को हासिल करके शहजादी नूर बानो को तोहफे में दे सके। उसकी बात सुनकर बूढ़ा सोच में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने कहा, परिस्तान में कुछ ऐसे नायाब परिंदे भी हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं, मगर इन्हें वहाँ तलाश करना पड़ेगा। परिस्तान जाने के दो रास्ते हैं, एक लंबा और ख़तरनाक रास्ता है, दूसरा रास्ता करीब का रास्ता है। अगर घोड़ा तेज़ रफ्तार हो तो वहाँ 1 घंटे में पहुँचा जा सकता है। उस रास्ते पर कोई खतरा भी नहीं है। अगले रोज़ रेहान सुबह सवेरे बेदार हुआ। बूढ़े ने उसे परिस्तान का रास्ता बताया और वह रवाना हो गया। तो बूढ़े ने उसे कुछ अमरूद दिए और बोला, परिस्तान के परिंदे अमरूद बहुत शौक से खाते हैं। ये फल परिस्तान में नहीं होते, इसलिए उनकी तलाश में वो इंसानों की दुनिया में आते हैं। ये अमरूद अपने पास रखो, मुझे यकीन है उनकी खुशबू परिंदों को तुम्हारी तरफ मतवज्जा कर देगी। हो सकता है इनमें से कोई बोलने वाला परिंदा भी हो। रेहान ने अमरूद लेकर उसका शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गया। जिस रास्ते पर उसका घोड़ा दौड़ रहा था वो बहुत साफ सुथरा और हमवार रास्ता था। एक लंबी पगडंडी थी जिसके दोनों तरफ में हरी हरी घास थी, कहीं कहीं तो फूल भी नजर आ रहे थे। उस रास्ते पर सफ़र करते हुए वो बहुत जल्द परिस्तान पहुंच गया। वो परिस्तान में दाखिल हुआ तो चारों तरफ चहल पहल नजर आ रही थी। हसीनो जमील परियां खूबसूरत और रंग बिरंगी लिबास पहने हुए इधर उधर उड़ती हुई नजर आ रही थीं। रेहान ने एक मैदान के चारों तरफ बहुत सारे परिजादों को देखा। वो करीब गया तो पता चला वो सब दियों की कुश्ती देखने में मसरूफ थे। उसका भी दिल चाहा कि वो भी कुश्ती देखे, मगर उसने वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा। वो बोलने वाले परिंदे की तलाश में चल दिया। उसकी नज़र दरख्तों पर लगी हुई थी ताकि उसे परिंदा नज़र आ जाए। वो चलते चलते एक बाग में पहुंचा। वहाँ बहुत सारे परिंदे थे। वो सब अपनी सुरीली आवाज़ में चहचहा रहे थे, मगर वहाँ कोई भी ऐसा परिंदा ना था जो इंसान की ज़बान में बातें कर रहा हो। रेहान को मायूसी हुई, मगर उसने हिम्मत ना हारी। उसने घास पर बैठकर कुछ अमरूद सामने रखे
अमरूदों की खुशबू से जितने भी परिंदे थे वहां आ गए और अपनी नन्ही चोंच से अमरूद खाने लगे। और बई परिंदों, क्या हाल है? रेहान ने कहा, मगर उनमें से किसी ने भी जवाब ना दिया। रेहान समझ गया कि इनमें से कोई भी बोलने वाला परिंदा नहीं है जो इंसानों की तरह बोलता हो। अमरूद खत्म हो गए तो वो सब खुशी खुशी उड़ गए। अचानक एक सुनहरी परिंदा वहां आया और रेहान के सामने बैठकर बोला, अफसोस, मुझे आने में देर हो गई, सारे अमरूद खत्म हो गए। रेहान का दिल उस परिंदे को इंसानी ज़बान में बात करता देखकर खुशी से बाग बाग हो गया। उसने एक बड़ा अमरूद निकाला, उस परिंदे के सामने रखा और बड़े प्यार से बोला, प्यारे परिंदे, फिक्र ना करो, मेरे पास और भी अमरूद हैं। ये सुनकर परिंदा पर फैलाता हुआ उसके सामने आकर बैठा और मज़े से अमरूद खाने लगा। क्या तुम मेरे साथ इंसानों की दुनिया में चलना पसंद करोगे? रेहान ने अपने मतलब की बात कह दी। क्यों नहीं, परिंदे ने जल्दी से कहा, मुझे वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ अमरूदों के बहुत सारे बाग हैं। मुझे अमरूद खाना बेहद पसंद है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो तुम मुझे पिंजरे में कैद तो नहीं करोगे? मुझे पिंजरे में कैद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी तलाश में बहुत दूर से सफ़र करके आ रहा हूँ। हमारे बादशाह की बेटी तुम्हें याद कर करके हलकान हो गई है। मैं तुम्हें लेकर उस शहजादी के हवाले कर दूंगा। वहाँ महल में तुम आराम से रह सकोगे। मैं इसे बता दूंगा, वो तुम्हें पिंजरे में कैद नहीं करेगी। रेहान ने कहा, मैं कुछ रोज़ पहले शहजादी से मिल चुका हूँ। मैं घूमने फिरने निकला था। इत्तेफाक से महल के बाग में शहजादी से मुलाकात हो गई। शहजादी एक अच्छी और खुश अखलाक लड़की है। मैं बाखुशी उसके पास रहने के लिए तैयार हूँ। रुड़ कर रेहान के हाथ पर बैठ गया। रेहान का मकसद पूरा हो गया, लिहाजा वो वापसी के सफ़र पर रवाना हो गया। काफ़ी ऊंचाई पर उसके घोड़े के साथ उड़ता हुआ परिंदा भी साथ आ रहा था। अभी वो अपने मुल्क की हदूद में दाखिल हुआ था कि उसने रहीम को दूर से आते हुए देखा। उसकी हालत निहायत ख़राब थी। रहीम ने भी उसे देख लिया। वो उसके करीब आया। दोनों एक दूसरे से मिले। रेहान के पूछने पर रहीम ने बताया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं इनाम की लालच में सफ़र के लिए निकला। परिस्तान के रास्ते बहुत खतरनाक हैं। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकला हूँ। रेहान ने उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया उसने इन दोनों मियाँ बीवी को अपने घोड़े पर बिठाकर उनके गांव पहुंचाया था। बूढ़े ने खुश होकर उसकी मदद की, जिसकी वजह से मैं उस बोलने वाले परिंदे को लाने में कामयाब हुआ। इन्हें बातें करता देखकर परिंदे ने कहा, रेहान, जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि रात हो जाए। रेहान ने रहीम को खुदा हाफिज कहा और अपने घोड़े को चलने का इशारा किया। रहीम ने उसे जाता देखा तो बोला, अगर मैं इन बूढ़े मियाँ बीवी के साथ बुरा सलूक ना करता तो मुझे भी बोलने वाला परिंदा मिल जाता, तो शहजादी के पास ऐसे दो परिंदे हो जाते। मैंने अपनी बदअखलाकी से इनाम हासिल करने का मौका ज़ाया कर दिया। ये कहकर वो अपनी राह को चल दिया। रेहान महल पहुंचा तो शहजादी परिंदे को देखकर बहुत खुश हुई। परिंदा भी बहुत जल्द उससे मानूस हो गया। शहजादी जहाँ भी जाती वो उसके पीछे पीछे आता। शहजादी नूर बानो ने वादा कर लिया था वो परिंदे को पिंजरे में कैद नहीं करेगी। शहजादी नूर बानो को खुश देखकर बादशाह और मलका ने भी सुख का सांस लिया। बादशाह ने रेहान की हिम्मत और बहादुरी की बहुत तारीफ की, इसलिए बादशाह ने रेहान को घर नहीं जाने दिया और शाही मेहमान बना लिया। अगले रोज़ हस्बे वादा बादशाह ने रेहान को बहुत सारी अशरफियाँ इनाम में दी। रेहान ने उसका शुक्रिया अदा किया और अशरफियों का थैला अपने घोड़े पर रखा महल से रुखसत हो गया। शहजादी नूर बानो ने भी अपने सुनहरी परिंदे के साथ रेहान को खुदा हाफिज कहा। जब रेहान जाने लगा तो उसका रुख घर की जानिब नहीं था। वो तेज़ी से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए उस बूढ़े के गांव गया, जिसकी मदद से वो बोलने वाला परिंदे तक पहुंचा था। वो उसके गांव पहुंचा तो उसे मालूम हुआ उसकी बीवी भी उसकी देखभाल में लगी हुई है। बीमारी की वजह से बूढ़ा अपने काम पर भी नहीं जा सकता था। रेहान को देखकर वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए। रेहान ने अपनी कामयाबी की खबर इन्हें सुनाई, फिर इन्हें बादशाह की दी हुई रकम में से आधी रकम इन्हें दे दी। इतनी अशरफियाँ पाकर वो दोनों बहुत खुश हो गए। रेहान को दुआएं देने लगे। उसके बाद रेहान अपने घर आ गया। उसने पूरी कहानी अपने माँ बाप को सुनाई और बादशाह से मिला हुआ आधा इनाम इनके हवाले कर दिया। उसकी बात सुनकर उसके माँ बाप को बहुत खुशी हुई कि उनके बेटे ने अपने मोहसिन को फरामोश नहीं किया और इनाम का आधा हिस्सा उसे दिया। रेहान ने इनाम में मिली हुई अशरफियों से अपना कारोबार शुरू कर लिया। उसके बाप ने जंगल से लकड़ियाँ लाना भी छोड़ दिया और कारोबार में अपने बेटे का हाथ बटाने लगा। थोड़े ही दिनों में उनका कारोबार चमक उठा। यूँ लकड़हारे का बेटा कमज़ोर इंसानों से मोहब्बत और उनकी मदद करने के सिले में
ماں باپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں۔ ایسے ہی مزید سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔